Namaste. I, Arun Vyas, welcome you on my YouTube channel, Ninad. Today we will talk about Mahashivratri. What is the significance of Mahashivratri and how to celebrate Mahashivratri. So let us begin. The 14th day of every Krishna Paksha, शिवरात्रि मनाई जाती है प्रत्येक मास. बट की चतुर्दशी को जो शिवरात्रि है वो महाशिवरात्रि कहलाती है. ये वही रात्रि है जिसके लिए दुर्गा सप्तशती में कहा गया है काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि दारुणा. तो महारात्रि ये महाशिवरात्रि के लिए कहा गया है. तो व्हाई इज महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड? व्हाट इज द रीजन? एक कारण है समुद्र मंथन से उत्पन्न विष का पान शिव ने किया था. दुर्वासा ऋषि के क्रोध से when Indra lost all his Shri and all his wealth and all his luster, Lord Vishnu suggested him to do a Samudra Manthan and get the Lakshmi out from Samudra. तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया, वासुकी नाग की रस्सी बनी. देवताओं में इतना बल नहीं था कि अकेले समुद्र मंथन कर पाते. उन्होंने असुरों की सहायता ली. सर्वप्रथम निकला विष. शिव ने उस विष का पान कर लिया. He swallowed it. He did not allow the wish to go into the system. He held it in the throat. So the throat became blue. And Shiv was called Neelakantha. 14 वस्तुएं निकली थी इनमें से. सबसे पहले निकला विष और अंत में निकला अमृत. ये एक सिंबॉलिकल स्टोरी है जो हमें बताती है कि यदि हम किसी काम में लगे, आरंभ में हो सकता है सफलता मिले, आरंभ में हमें विष मिले, किंतु अंत में अमृत मिलता ही है. चलिए, दूसरा जो कारण है ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति. Once there was a discussion between Brahma and Vishnu, superior कौन है दोनों में से. So they both went to Mahadev. Shiva said that I will convert myself into a shaft of light, into a ज्योतिर्लिंग. और आप दोनों में से जो भी उसका एंड ढूंढ के ले आएगा वो बड़ा. When he converted himself into the shaft of light, Brahma went to one end and Vishnu went to the other end. Neither of them could find the end. So Vishnu came back and he said, I could not find the end of the shaft. When Brahma came, he lied. And he said, no, I have found the end of the shaft. So there was this केतकी flower. He said, ये केतकी का पुष्प is my witness. साक्षी है इस बात का. केतकी का पुष्प आज भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता. What is the shaft of light? The shaft of light, जिसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, is the self-illuminated shaft of knowledge. Truth is self-illuminated. So the Shivling actually is the shaft of self-illuminated truth. ज्योतिर्लिंग का उद्भव महाशिवरात्रि पर हुआ. ये भी एक कारण है कि महाशिवरात्रि मनाई जाती है. और तीसरा, शिव married Parvati. And after that, Shiva went into ecstasy and performed his Ananda Tandava. The main reason why Shivratri is celebrated is, on Mahashivratri, there is an upsurge of spiritual energies. Nature is pushing the human to its spiritual peak. What is the purpose of existence? To reach the spiritual peaks. So then how do we celebrate Shivratri? First of all, we need to understand Shiva Tattva. We cannot understand Shiva. We can only experience Shiva by becoming Shiva. But we can try and understand what Shiva Tattva is. We can try and understand that by understanding the attributes of Shiva Tattva. सर्वप्रथम हम शिव का प्रणाम करते हैं as the divine teacher, as the Dakshinamurti. Before we proceed, we will recite the Dhyana mantra of Shiva. Shuddha Sfatika Sankasham Trinetram Panchavaktram Gangadharam Dashabhujam Sarvabharana Bhushitam Neelagrivam Shashagangam Nagayagyopavitinam Vyagracharmottariyam Cha Varenyam Abhayapradam Kamandal Vakshasutranam Dharanam Shulapaninam Jwalantam Pingala Jata Shikhamudyota Dharanam Vishaskanda Samarudham Umadehard Dharanam Amritenavrutam Shantam Divyabhog Samarvitam Digdevata Samayuktam Surasura Namaskatam Nityam Shashvatam Shuddham Dhruvam Aksharam Avyayam Sarvavyavinam Ishanam Rudram Vai Vishwarupinam Evam Dhyatva Dujasam Yaktato Yajanamara आगे बढ़ते हैं. There are 8 aspects of Shiva.
सर्वभव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान और महादेव. He is omniscient, he is Sharva. He is the most merciful, he is Bhava. He is the force which leads towards the upward evolution of the conscious being. Why has the human being come on earth? To experience the delight of higher levels of consciousness. And that ascent, that journey towards the higher level of consciousness, the force behind that is Rudra. All obstacles which come on the path of this spiritual journey, he smashes them. He destroys the enemies. Rudra is perhaps the only Vedic deity of whom the Vedic rishis were scared of. हम जब अभिषेक करते हैं हम क्या कहते हैं? रुद्राभिषेक. We don't say Shivabhishek. We don't say Mahadevabhishek. The next aspect is Ugra. He is the flaming force of the universe. He is the Bhim, he is the larger one. As Bhim, he removes all the obstacles and all the difficulties. The other aspect is his Pashupati aspect. जो पशु भाव में अभी भी हैं उनका ध्यान कौन रखेगा? उनके स्वामी ये महादेव, इसीलिए वो पशुपति कहलाए. नंदी उनका वाहन is a symbol of sitting on the पशु, पशुपति. और वो ईशान है. He is the most brilliant one, therefore he is called the ईशान. And he is worshipped by everybody. देवाधिदेव है इसलिए वो महादेव है. महादेव का द्वार सबके लिए खुला है. There are the other 5 aspects. These 5 aspects are symbolized by his 5 heads. सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष और ईशान. सद्योजात वो मुख है जो ब्रह्मा को आशीर्वाद देता है सृष्टि की रचना के समय. वामदेव वो मुख है जो ब्रह्मा को आशीर्वाद देता है रची हुई सृष्टि के पालन और देखभाल करने में. तीसरा मुख जो है वो अघोर. He represents knowledge. He also represents the destruction of ignorance. And then it is Tatpurush. Tatpurush represents the delight of soul. And finally we have Ishan. Ishan is the Chit Shakti of Ish. Ishan represents space, जहाँ से सब उत्पन्न हुआ है. Shiv gave Sanskrit to the mankind. The Devatas didn't have a language exalted enough to, or which was developed enough to enable them to communicate their thoughts. Rich language was not available. तो सब शिव के पास में गए. शिव उस समय आनंद तांडव कर रहे थे. आनंद तांडव के बाद वे प्रसन्न होकर उन्होंने अपना डमरू बजाया जिसमें से 14 स्वर निकले. नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ठक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम. तो व्याकरण के सूत्रों का प्रवर्तक किसको माना जाता है? भगवान नटराज को. Shiva releases man from the fear of death. He is Kal, he is time, and he is Mahakal, the devourer of time. काल के प्रभाव को रोकने की सामर्थ्य केवल महादेव में है. Can we imagine a situation when there is no काल? एक बिंदु है चेतना का, न उसमें भूतकाल है, न उसमें भविष्य है, केवल एक वर्तमान का बिंदु है. महाकाल की उपासना करने वाला चेतना के उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां और वो त्रिकालज्ञ बन जाता है क्योंकि उसके लिए वर्तमान और भूत और भविष्य सब एक जगह आके रुक जाते हैं. इसी का दूसरा अर्थ है मृत्यु के भय से बचाने वाले, क्योंकि काल को ग्रास करने वाले कौन? महाकाल. दैट इज वाई व्हेन पीपल फॉल सिक उनको कहा जाता है कि आप महामृत्युंजय का जप करें. तो मृत्युंजय का अनुष्ठान मृत्यु के भय से बचाने के लिए. मृत्यु तो है, अवश्यम भावी है. यू कैन नॉट एस्केप डेथ बट यू कैन ओवरकम द फियर ऑफ डेथ. त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारिकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्. Sri Aurobindo says that the death is at 2 levels. One is the physical death. Shiva helps us overcome sickness and the fear of death. The other is the spiritual death, alleviating mankind from spiritual ignorance. Death by spiritual ignorance is a larger death. He releases man from the fear of mortal death. He releases man from the fear of spiritual death. शिव एंड पार्वती आर इंसेपरेबल. हमारे शास्त्रकारों ने उनको किस प्रकार से देखा है? उस त्रिलोचन में मेरी रति हो जिसमें इतनी सामर्थ्य है जो गिरिजा के स्तन के ऊपर चित्रकारी कर पाए. धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र प्रकल्पने शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम. ऐसे महादेव की उपासना करूं. और दूसरी ओर तुम हो क्या महाराज? चिराग में भस्म लपेटी हुई है,
गले में तुम्हारे सांप है, नग्न अवस्था में वो दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। भूतों के नाथ हो तुम तो, हाथ में खप्पर लिए बैठे हो, किंतु फिर भी तुम्हें दुनिया जगदीश की पदवी देती है। भटती जगदीश एक पदवी, क्यों कि भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। ये आपसे जो विवाह हुआ है ना महादेव का, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड जगदीश। चिदाभस्मा लेपो गरलमशनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। कपाली भूतेशो भजति जगदीश एक पदवी, भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। Such a beautiful relationship. ये शिव शक्ति का जो अभिन्न संबंध है, दिस हैज बीन विजुअलाइज्ड एज अर्धनारीश्वर, आदि शिव आदि पार्वती। चांपे गौरार्ध शरीर काय, कर्पूर गौरार्ध शरीर धम्मलिका जटाधर नमः शिवाय नमः शिवाय। आधा जो है वो चंपा के रंग जैसा है, आधा कर्पूर के रंग जैसा है, आधे में तो धम्मलिका है, बड़े सुंदर बाल है, और आधे ने जटा पहनी हुई है। शिवा को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है। 70 kilometers south of Pondicherry is the city of चिदम्बरम। चिदम्बरम में नटराज मंदिर है। नटराज के मंदिर के भीतर एक आला है, उसके ऊपर स्वर्ण के पत्तों से ढका रहता है, स्वर्ण के बिल्व पत्रों समझ के उनसे ढका रहता है, and there is nothing inside, and that is called the Chidambaram Rahasya. That only those who are liberated souls, only those who have realized themselves, वो यदि उस आले के अंदर देखेंगे तो उन पत्तों के पीछे उनको भगवान महादेव के साक्षात दर्शन होंगे। आप और हम जाते हैं देखते तो we simply see one आला, nothing else. So then what is Chidambaram Rahasya? The meaning of Chidambaram Rahasya is in the name itself. Shiva is the dancer, the cosmic dancer. Therefore he is the Nataraj. And where is he dancing? In Chidambaram. Chitta means consciousness, and Ambar is the space of consciousness. Shiva is dancing in our space of consciousness. हमारे भीतर, हमारे चित्त के अंबर में जो नृत्य हो रहा है, वो नटराज का नृत्य है. And what does the dance indicate? It indicates Anand. Is the dance, when we see somebody dancing, we see there is a movement of all the limbs and the head and the torso in different directions. And they seem very arbitrary. एक हाथ इधर गया, एक हाथ उधर गया, एक पैर इधर गया, एक पैर उधर गया. Underlying these arbitrary movements is a coherence. These movements are governed by the consciousness. नटराज के नृत्य से ताल उत्पन्न हुआ, उस ताल से छंद उत्पन्न हुआ, उस छंद से काल उत्पन्न हुआ. नृत्य करने के लिए स्पेस चाहिए, आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई. और वो डमरू है, डमरू से नाद उत्पन्न हो रहा है, और नाद से ओम उत्पन्न होता है. ओम से सारे जगत की सृष्टि होती है. The dance of Nataraj is the cosmic dance which actually indicates the origin of creation. It is the dance of the cosmos in the cosmos. The entire cosmos is dancing. And where is it dancing? It is dancing in the cosmos. So the dance of Shiva is the dance of the cosmos in the cosmos, and is happening all around us in all matters of the universe and also in the consciousness. अणुरणीया महतो महीयान, अणु से लेके छोटे से छोटे में और बड़े से बड़े में the dance is taking place. Atom के अंदर जो movement है, neutrons, protons, electrons, that is the dance of Shiva. There is a dance and there is a rhythm and an ecstasy all around us. Not one rhythm goes wrong. इस पूरे ब्रह्मांड में कभी कोई ग्रह दूसरे से टकराए तो नहीं. Because in this Brahman, which seems to be an arbitrary movement in the galaxies, everything is in harmony. This is the grand cosmic dance of Shiva. And the same grand cosmic dance of Shiva is happening in our own consciousness. When we are in tune with ourselves, we experience that Anand. We experience that beauty, that joy. So what is the Chidambaram Rahasya? So Chidambaram Rahasya is be the dancer and become the dance. एक लय हो जाओ. जब हम वो हो जाएंगे तो हमारे भीतर वो जो विंडो है चिदम्बरम टेम्पल में, जिसके अंदर महादेव दिखाई देने वाले होते हैं,
यहाँ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। एंड दिस इज वन थिंग विच वी शुड रिमेंबर ऑन शिवरात्रि। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड शिव। वाचामतीतम, यू आर बियॉन्ड वर्ड्स। आद्यांत शून्यम, आदि से लेके शून्य तक तो आप हो। शून्य डज नॉट मीन नथिंग, शून्य मीन्स अनंत। नित्यम अनंत्य माध्यम, आप नित्य हो, आप अनंत हो, आप आदि में भी हो। So difficult to understand. Because it is impossible to describe Shiva, we mark Shiva by a lingam. अब शिवलिंग बना दिया, भाई यही है, इनको जो समझना है आप समझ लो, जैसा आपको धारणा करनी आप कर लो। तो ज्योतिर्लिंग के स्थूल रूप बने शिवलिंग। It is impossible to describe Shiva. So he is marked by a lingam. How to perform the Shiva puja? सबसे पहली बात ये काम, remain conscious of your existence. आत्म केंद्रित होकर रहिए। मैं हूं, मेरी सत्ता है, मैं जो कुछ करूंगा अपने होश में करूंगा। कितनी बार आप अपने ऑफिस की सीढ़ियां चढ़े होंगे, उतरे होंगे? डू यू नो द नंबर ऑफ स्टेप्स यू हैव? वी सी बट वी डोंट लुक। सिमिलरली हियर वी डू थिंग्स बट वी आर नॉट कॉन्शियस दैट वी आर डूइंग इट। शिवरात्रि के दिन बिकम कॉन्शियस ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस इंटॉक्सिकेंट्स। वो भांग और धतूरा और दुनिया भर का वो सब जो अफीम और गांजा सब लोग पीना शुरू कर देते हैं शिवरात्रि पर शिव के नाम से, उनसे दूर रहिए। उपवास रखें, क्योंकि रात्रि में जागरण करना हो चाहिए। इफ यू कांट ऑब्जर्व अ फास्ट, ईट लेस, मेडिटेट, प्रे फॉर एनलाइटनमेंट। विच इज द बेस्ट टाइम फॉर प्रेयर? 2 times I have mentioned here. The first time is the ब्रह्म मुहूर्त, और दूसरा काल है रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक, when you should be observing, doing all your puja and doing your meditation. शिव की पूजा के लिए केवल 3 पूजा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले गणपति को नमस्कार कर दीजिए, उसके बाद में देवी को नमस्कार कर दीजिए, उसके बाद में शिव को नमस्कार कर दीजिए, एंड डू योर पूजा। कोई मंत्र नहीं आता, डजंट मैटर। इट इज कॉल्ड ए पंचोपचार पूजा। 5 वस्तुओं से पूजन किया जाता है, और ये 5 वस्तुएं जो है दे इंडिकेट द पंचतत्व। अब भगवान को पुष्प चढ़ाएं, आप भगवान को तिलक लगाएं, आप भगवान को धूप दिखाएं, आप भगवान को दीपक दिखाएं, आप भगवान को भोग लगाएं। यही आप देवी के साथ में करिए। उसी प्रकार से आप देवी की पूजा करें, देवी को भी पंचोपचार से पूजन करें, और उसके बाद शिव का पंचोपचार से पूजन करें। यदि आप रात में किसी मंदिर में जाके पूजन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, घर में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यदि आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। यदि शिवलिंग नहीं है तो भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ के आप प्रार्थना करिए। एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो है भगवान का नाम लेके कुछ चढ़ाने को। इसको हम कहते हैं अर्चना। महादेवाय नमः चढ़ाया, शंभवे नमः, पशुपतये नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमः, बलाय नमः, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमः, मनोन्मनाय नमः, अघोराय नमः। इस प्रकार से। तो ये जो अर्चना करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक है वो पदार्थ जिससे अर्चना की जाती है, और एक स्तोत्र पाठ जिससे अर्चना की जाती है। सामान्य रूप से किसी भी देवता के सहस्त्र नाम, 1000 नाम से उनकी अर्चना की जाती है। शिव सहस्त्र नाम अनेक हैं। सर्वाधिक प्रचलित शिव सहस्त्र नाम है जो महाभारत में मिलता है। अनुशासन पर्व में दंडी ऋषि ने एक शिव सहस्त्र नाम जो स्वर्ग से लेके आए थे और यहाँ लोगों को दिया था, उसका उल्लेख है। यू कैन फाइंड देम ऑन द इंटरनेट। एक एक नाम पढ़िए और एक एक पदार्थ चढ़ाइए। अब क्या चढ़ाएं? सर्वोत्तम, इफ यू कैन मैनेज दैट, बेलपत्र और सफेद चंदन। बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाइए, एक नाम के साथ चढ़ाइए। बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाइए, दूसरे नाम के साथ चढ़ाइए, तीसरे नाम के साथ चढ़ाइए। यदि आपके पास में चंदन नहीं है, केवल बेलपत्र चढ़ाइए। दोनों में से कुछ नहीं है, चावल चढ़ाइए। वो भी नहीं है तो अर्चना के स्थान पर अभिषेक कर दीजिए। हर नाम के साथ भगवान के ऊपर जल चढ़ा दीजिए, छींटा चढ़ा दीजिए। आशुतोष है, सब स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट एवरीथिंग। अब यदि आपको पाठ करने हैं कहीं,
जो लोग करना जानते हैं वो रुद्राभिषेक करें, शिव की स्तुति करिए। शिव का उपनिषद मिलता है। Try and get a copy of the Upanishad which has got the Hindi meaning or the translation in your language. Understand what you are reading. Don't read without understanding the meaning. शिव की स्तुति है, शिव उपनिषद है, शिव महिम्न स्तोत्र है। पुष्पदंत ने लिखा हुआ है शिव महिम्न स्तोत्र। बहुत सुंदर है, बहुत पावरफुल भी है। You can get a copy on the internet with meaning. Initially, there may be difficulty to recite in Sanskrit for those who do not read Sanskrit, but I tell you, reading Sanskrit is probably the easiest thing one can do. रुद्राष्टक गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ, नमामीशम ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, वो पढ़िए। बहुत सिंपल से तरीके हैं ये, और शिवार्चन मैंने आपसे कहा ही है। यदि आप ध्यान करना चाहते हैं शिव का, आप बैठ के ध्यान करिए। यू कैन जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ एंड डू योर मेडिटेशन। आपकी परंपरा में जो ध्यान के तरीके बताए गए, ध्यान की पद्धतियां, आप उनसे ध्यान करिए। यदि आप चाहते हैं शिव का पंचाक्षरी मंत्र जपना, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करिए, महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, कुछ भी करिए। किंतु एक बात ध्यान रखने की है आपको शिवरात्रि पर कि there's an upsurge of spiritual energies. So at night, sit with your spine erect. There is a very valid reason why I'm asking you to sit with your erect spine. And whenever you sit, you should sit with an erect spine, but especially when you're sitting for your meditation, and that also during Shivratri. If you can't do anything at Shivratri, be in the company of good people. Watch something which is nice and interesting and spiritual on the internet, but sit with your spine erect. Spine is called Meru Danda. Meru is the name of a mountain which is supposed to be the center of earth and also therefore the center of the universe. What can be the center of something which is infinite? Any spot can become the center because it is infinite. So wherever you are sitting, you become the center of the universe. And whenever you are sitting in meditation, you are the Meru. And the spine is the Dand, so it is called the Meru Dand, the center of the universe. You become the center of the universe when you are sitting in meditation with your erect spine. You see, in nature, there has been a progression in nature. Earlier, the spine used to be horizontal. Now the spine has become vertical. This is not arbitrary. There is a plan behind this. The spine turning from horizontal to vertical. So whatever form of worship you do, especially on Mahashivratri, at night, keep your spine erect. Don't fall down to sleep. Don't slouch. Sit erect. अंत में मैं आज की वार्ता को यहीं समाप्त करूंगा एक प्रार्थना के साथ में, महादेव को पूजन करके कि महादेव आप ही मेरी आत्मा हो, भगवती मेरी बुद्धि है, मेरे प्राण मेरे मित्र हैं, ये शरीर मेरा घर है, जो मैं विषय भोग जो करता हूँ ये मेरी पूजा है, सो जाता हूँ तो मेरी समाधि है, दुनिया में काम धाम चलता फिरता हूँ ये आपकी प्रदक्षिणा है, जो कुछ बोलता हूँ ये मेरा स्तोत्र पाठ है, यही मेरी आराधना है शंभु, स्वीकार करो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। और अंत में क्षमा प्रार्थना,
हाथ से, पैर से, मन से, मुख से, विचार से, आंख से, कान से, कहीं भी, जाने अनजाने, ज्ञात अज्ञात कोई पाप हो जाए तो क्षमा करना महाराज। करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वापराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वतीवामभागं सदा शिवं रुद्रमनन्तरूपं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि।